عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد سنہری دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس کے بڑے بازاروں میں چین کی ریشم، ہند کے مسالے اور دنیا کے عظیم ترین عالموں کی دانشمندی بھری ہوئی تھی۔ مگر اس شان و شوکت کے نیچے، ان گلیوں میں جہاں تازہ روٹی کی خوشبو زمین کی دھول میں گھل جاتی تھی، ایک ایسا آدمی رہتا تھا جس کا نام ابھی دنیا نے نہیں سنا تھا، جنید بن سلیم۔ جنید ایک غریب آدمی تھا، ایک معمولی کمہار کا بیٹا۔ اس کا باپ اس وقت فوت ہو گیا تھا جب وہ ابھی بچہ تھا، پیچھے صرف ایک چھوٹی سی دکان اور قرض چھوڑ گیا تھا جو بغداد کی عظیم مسجد کی دیواروں سے بھی بھاری لگتا تھا۔ ہر دن جنید صبح سے آدھی رات تک محنت کرتا، اپنے ہاتھوں سے مٹی کے برتن بناتا، اس کا جسم درد سے ٹوٹتا، مگر جو کماتا وہ صرف چند روٹیاں خریدنے کے لیے کافی ہوتا۔ مگر اس کے دل میں ایک ایسا یقین تھا جو پہاڑوں سے بھی مضبوط تھا۔ اے اللہ، وہ مٹی گونجتے ہوئے دعا کرتا، مجھے دولت لالچ کے لیے نہیں چاہیے، نہ ہی طاقت غرور کے لیے۔ مجھے بس وہی عطا کر جو میں ایمانداری سے کماؤں، اور میرے دل کو پاک رکھ۔ بغداد کے لوگ اکثر اس کا مذاق بناتے، تم غلاموں کی طرح کام کرتے ہو مگر فقیر ہی رہتے ہو، وہ کہتے۔ مگر جنید ہمیشہ مسکرا دیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل رزق صرف اللہ دیتا ہے۔ ایک شام جب جنید اپنی دکان بند کر رہا تھا تو ایک امیر آدمی نیلے رنگ کے قیمتی لباس میں اس کے پاس آیا۔ اس کا نام ابو نصر الکندی تھا، جو بغداد کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ایک تھا۔ میں نے تمہاری کاریگری کے بارے میں سنا ہے، کمہار، ابو نصر نے کہا۔ میرے پاس فارس کے ملک سے آیا ہوا ایک نایاب گلدان ہے جو 1000 دینار سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ٹوٹ گیا ہے۔ اگر تم اسے ایسے جوڑ دو کہ کسی کو دراڑ کا پتہ نہ چلے تو میں تمہیں اچھا انعام دوں گا۔ جنید نے چراغ کی روشنی میں گلدان کو غور سے دیکھا۔ یہ واقعی بہت قیمتی تھا، اس کے کنارے سنہری نقش و نگار سے سجے ہوئے تھے۔ مگر جیسے ہی اس نے دراڑ پر ہاتھ پھیرا، وہ جان گیا کوئی بھی انسان اسے بالکل پہلے جیسا نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، اے معزز تاجر، میں اس گلدان کو جوڑ سکتا ہوں مگر میں اسے پہلے جیسا مکمل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اسے بیچیں گے تو خریدار جان جائے گا کہ یہ کبھی ٹوٹا تھا۔ ابو نصر نے حیرت سے بھنویں الفاظ قائم، تو پھر دھوکہ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ کبھی سچائی جان ہی نہیں سکیں گے۔ جانید ایک قدم پیچھے ہو گیا اور بولا، کیونکہ اللہ جانتا ہے میں اپنی قسمت جھوٹ کی بنیاد پر نہیں بناؤں گا۔ تاجر نے اسے چند لمحے غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا قہقہا لگایا۔ تم تو بغداد کے سب سے ناسمجھ انسان ہو، کیا سب سے نیک؟ وہ آگے بڑھا اور سونے کی تھیلی جانید کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ لو، یہ گلدان کے لیے نہیں، تمہاری ایمانداری کے لیے ہے۔ ایسے لوگ کم ملتے ہیں اور شاید مجھے تمہاری پھر ضرورت پڑے۔ زندگی میں پہلی بار جانید کے ہاتھوں میں اتنا سونا آیا تھا جتنا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات تھی، ایک ایسے امتحان کی جو سونے اور مٹی دونوں سے بڑا تھا۔ اسی رات جب جنید خاموش گلیوں سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اچانک ایک تاریک گلی سے ایک گہری پرسکون مگر پراسرار آواز ابھری، جنید بن سلیم، وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جنید نے چونک کر گردن گھمائی۔ اس کے سامنے ایک سیاہ لبادے میں لپٹا شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ گہرے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس میں کوئی عجیب سی قدامت تھی، جیسے وہ صدیوں سے وقت کے لمس سے محفوظ رہا ہو۔ میں مدتوں سے ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو ہمیشہ سچ بولے، اجنبی نے کہا، اور آج میں نے اسے پا لیا۔ جنید کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
तुम कौन हो? अजनबी ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये तुम जल्द ही जान जाओगे। लेकिन मुझे बताओ जुनैद, अगर अल्लाह तुम्हें वो ताकत और दौलत अता कर दे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो क्या तुम फिर भी ईमानदार रहोगे? जानियद ने मुट्ठी सख्ती से बंद कर ली। मैं अपनी सच्चाई को कभी सोने के एवज नहीं बेचूंगा। अजनबी ने आहिस्ता से सर हिलाया। फिर तुम्हारा असल सफर अब शुरू होता है। इससे पहले कि जुनैद कोई और सवाल कर पाता, वो शख्स पलटा और अंधेरे में इस तरह गायब हो गया जैसे साया रोशनी में घुल जाता है। और यूं तकदीर ने एक ऐसी कहानी बनाना शुरू कर दी जो सदियों तक सुनाई जाने वाली थी। जानियद चांदनी में खड़ा रहा, इसका जहन सवालों से भरा हुआ था। वो अजनबी कौन था जो उसका नाम जानता था? वो किस तरह अचानक गायब हो गया? लेकिन बगदाद की गलियों के अपने उसूल थे। यहां सरगोशियां हुआ की तरह सफर करती थीं और हर राज किसी न किसी तकदीर से मुंसलिक होता था। जानियद ने गहरी सांस ली, अबू नस्र की दी हुई सोने की थैली मजबूती से पकड़ी और घर की तरफ रवाना हो गया। इसका घर दरियाए दजला के किनारे एक मामूली मिट्टी की झोंपड़ी थी, जहां पानी शहर के माजी और मुस्तकबिल की कहानियां बहा कर ले जाता था। इसने सोने की थैली लकड़ी की मेज पर रखी और सजदे में गिर गया। ए अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि मेरे सामने कौन सा रास्ता है, मगर अगर ये आजमाइश है तो मुझे हिम्मत अता फरमा। दौलत मुझे खराब न करे और खौफ मुझे कमजोर न बनाए। अगली सुबह जब बगदाद पर सूरज की पहली किरणें पड़ी तो दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। जुनैद ने दरवाजा खोला तो एक शाही कासिद गहरे सुर्ख लिबास में खड़ा था। इसकी नजरें जुनैद पर गड़ी थीं। जुनैद बिन सलीम, इसने सख्त लहजे में पूछा। जी, और जुनैद ने मोहतात लहजे में जवाब दिया। कासिद ने एक मोहरबंद फरमान इसकी तरफ बढ़ाया, जिस पर अब्बासी खिलाफत के वजीर आजम का निशान मौजूद था। तुम्हें महल में तलब किया गया है, फौरन रवाना हो जाओ। जुनैद का दिल जोर से धड़कने लगा। महल? एक आम कुम्हार को वजीर आजम क्यों याद कर रहा था? इसके ना तो कोई दुश्मन थे, ना वो किसी दरबारी साजिश का हिस्सा था, मगर उसके अंदर कुछ सरगोशी कर रहा था कि ये सब इसी रात वाले अजनबी से मुंसलिक है। सुबह की नमाज अदा करने के बाद वो खलीफा अल-मुतमिद के अजीम किले की तरफ रवाना हो गया, जहां सिर्फ सल्तनत के ताकतवर तरीन लोग आजादाना चल सकते थे। महल की दुनिया किसी और ही आलम की लग रही थी। संगमरमर के तवील राहदारियां सुनहरी कंदीलों से सजे दर ओ दीवार, बागात में सायादार चबूतरों के नीचे उल्मा के इल्मी मुबाहिसे और तलवारों से सजे सिपाहियों की कतारें जो पत्थर के बुतों की तरह खड़े थे। जानियद को एक वसी कमरे में ले जाया गया, जहां वजीर आजम बन खालिद एक बुलंद मसनद पर बैठा था। वो तेज ज़हन और उससे भी तेज चालाकी रखने वाला शख्स था, जो हमेशा अपने साथ काम करने वालों की आजमाइश लेता था। इसके पहलू में अबू नस्र खड़ा था, वही ताजिर जिसने पिछली रात जानियद की ईमानदारी को परखा था। इसकी मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि ये कोई आम बिलवाना था। वजीर ने जानियद का गहरी नजरों से जायजा लिया। मैं तुम्हारी शोहरत के बारे में सुन चुका हूं कुम्हार। जानियद ने सर झुकाकर कहा, मैं महज एक मामूली कारीगर हूं हुजूर। वजीर हल्के से मुस्कुराया। मुझे आजिजी से गरज नहीं, मुझे सच्चाई से वास्ता है। मैं झूठों से ज्यादा किसी को नापसंद नहीं करता, क्योंकि चूर सुना चुराता है मगर झूठा एतमाद चुराता है। मुझे बताओ, अगर कोई आदमी तुम्हें किसी दूसरे को धोखा देने के लिए दौलत की पेशकश करे तो क्या तुम कबूल करोगे? जानियद की आवाज मजबूत थी। नहीं हुजूर, धोखा रूह के लिए जहर है।
वजीर की नजरें तेज हो गईं। और अगर इनकार करने की कीमत तुम्हारी हर चीज हो? जानियद ने सीधा खड़े होकर कहा, तो मैं सब कुछ खो दूंगा। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर वजीर मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट नरमी की नहीं बल्कि पसंदीदगी की थी। अच्छा, अब देखते हैं कि तुम्हारी जुबान इतनी ही सच्ची है जितना तुम्हारा दिल। जानियत के दिल पर वजीर आजम के अल्फाज की गूंज वैसे ही महसूस हुई जैसे सहरा की तपती धूप बदन पर बरसती है। इसके सामने जंजीरों में जकड़ा एक ताजिर कांप रहा था। इसके लिबास फटे हुए थे, चेहरे पर चोटों के निशानात थे और आंखों में खौफ के साए लर्जा थे। वजीर ने अपनी नशिस्त से जरा आगे झुक कर कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे लिए ईमानदारी सबसे मुकद्दम है जानियद। आज देखते हैं कि तुम्हारा फैसला तुम्हारी जुबान की तरह सच्चा है या नहीं। दो कातिब आगे बढ़े, खलीफा के खजाने के हिसाबात से भरे तुमार हाथों में लिए। उनके साथ एक शाही अफसर भी खड़ा था जिसकी पेशानी पर संजीदगी की लकीरें वाज़ेह थीं। वजीर ने ताजिर की तरफ इशारा किया। ये शख्स खलीफा के खजाने में खयानत का मुल्जिम है। खातों में रद्द व बदल, चांदी के वजन में कमी और ताज को धोखा देने का इल्जाम है। अगर ये मुजरिम साबित हुआ तो उसकी सजा सख्त होगी। अगर बेकसूर हुआ तो आजाद कर दिया जाएगा। इसका फैसला तुम करोगे। जानियत का दिल जोर से धड़का। वो कौन होता था फैसला करने वाला? वो एक आम कुम्हार था, न कि कोई काजी या मुफ्ती। मगर उसके बातिन ने सरगोशी की कि ये आजमाइश सिर्फ ताजिर की नहीं, इसकी अपनी भी है। इसने गहरी सांस ली और मुल्जिम की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? ताजिर ने बमुश्किल कहा, मेरा नाम मूसा बन हारिस है मेरे आका। जानियद नरमी से बोला, मैं कोई आका नहीं मूसा। बस मुझे सच बताओ, क्या तुमने खजाने में खयानत की? मूसा के लब कांपे। मैंने नहीं की। वजीर ने आंखें तंग कर ले। ये झूठ बोल रहा है। जानियद ने वजीर के अल्फाज नजरअंदाज किए और शाही अफसर की तरफ रुख किया। तुमने खातों की पड़ताल की? अफसर ने सर हिलाया। हां, और उनमें गड़बड़ है। चांदी का वजन कम है जितना कि दर्ज किया गया था। जानियद ने भनवे सुकेड़ ले। और चांदी का वजन किसने किया था? अफसर ने हिचकिचाते हुए कहा, मूसा। मगर उसके शागिर्द भी शामिल थे। जानियद ने दोबारा मूसा की तरफ देखा। तुम्हारे शागिर्दों में से किसको रिकॉर्ड तक रसाई हासिल थी? मूसा की नजरें झक गईं। इसकी आवाज सरगोशी में बदल गई। सबको। हाल में सरगोशियां गूंजने लगे। वजीर ने एक भनवे अल्फाज कायम। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी पर शक हो मूसा। मूसा ने मुट्ठी भींच ली। मेरे आका, मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर मैंने चोरी नहीं की। जानियद ने मूसा के चेहरे को बगौर देखा। खौफ और बेबसी तो थी, मगर वो झूठे शख्स की बेचैनी महसूस नहीं कर सका। वो वजीर की तरफ मुतवज्जे हुआ। मेरे आका, फैसला सुनाने से पहले मैं एक दरखास्त करना चाहता हूं। वजीर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। क्या चाहते हो कुम्हार? जानियद ने आहिस्ता से कहा, मुझे रात भर की मोहलत दी जाए ताकि मैं सच्चाई तक पहुंच सकूं। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। वजीर ने अपनी नशिस्त के हत्थे पर उंगलियां बजाईं, फिर बोला, ठीक है, तुम्हें तुलुआ आफ्ताब तक का वक्त दिया जाता है। इस रात जुनैद ने नींद को करीब नहीं आने दिया। वो दरियाए दजला के किनारे बैठा चांदनी में झिलमिलाते पानी को देख रहा था, गहरे ख्यालों में गुम।
अगर मूसा बेकसूर था तो फिर असल मुजरिम कौन था? और अगर वो वाकई चूर था तो इसका यकीन कैसे किया जाए? तभी एक मानूस आवाज हवा में गूंजी, तुम हिचकिचा रहे हो? जानियद ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। करीब ही एक देवदार के दरख्त के साए से वही पुरस्रार शख्स नमूदार हुआ। फिर तुम? जुनैद ने आहिस्ता कहा। अजनबी ने कदम आगे बढ़ाया। इसका चेहरा अब भी निकाब के नीचे छुपा हुआ था। आज तुम्हें एक इंसान की जिंदगी का इख्तियार दिया गया, मगर तुम्हें इसका फैसला करने में खौफ महसूस हो रहा है। जानियद ने संजीदगी से जवाब दिया, किसी की किस्मत का फैसला करना मामूली बात नहीं। अजनबी ने सर हिलाया। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम वही गलतियां नहीं करोगे जो दूसरों ने की। जानियद ने आंखें तंग कर ले। तुम कौन हो? अजनबी हल्का सा हंसा। ये सवाल अभी वक्त से पहले है, मगर मुझे बताओ जानियद, अगर सच्चाई झूठ की तहों में दफन हो तो क्या तुम इसे ढूंढने के लिए काफी गहराई तक जाओगे? जानियद ने सीधा खड़े होकर कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर जाऊंगा। अजनबी ने जेब से एक छोटी सी थैली निकाली और जानियद के कदमों में फेंकी। थैली जमीन पर गिरी तो इसमें से धात की टकराने की आवाज आई। जानियद ने थैली उठाकर खोली तो इसमें कई चांदी के सिक्के थे, वही सिक्के जो खलीफा के खजाने में इस्तेमाल होते थे। इसका सांस राग गया। ये सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए? अजनबी की आवाज हवा में सरगोशी की तरह बखर गई। चांदी के नक्श कदम पर चिल्लू और चूर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। जानियद अभी मजीद सवाल करने ही वाला था कि अचानक वो पुरस्रार शख्स दोबारा अंधेरे में गायब हो गया और उसके पीछे सिर्फ हवा में सरसराहट रह गई। जानियद ने अपने हाथ में मौजूद सिक्कों को घूरा। एक हकीकत इस पर आश्कार हो रही थी। असल चोर अभी भी पर्दों में छुपा था और तुलून आफताब तक जुनैद को इसे बेनकाब करना था। चांदनी में चमकते चांदी के सिक्के जैसे कोई राज सरगोशियों में इसके कानों में कह रहे हों। इसने इन सिक्कों को पलट कर देखा, हर निशान, हर महर का बगौर जायजा लिया। ये बिल्कुल वही सिक्के थे जो खलीफा के खजाने में इस्तेमाल होते थे। इसके जहन में वो अजनबी अल्फाज गूंजे, चांदी का पीछा करो और तुम्हें चूर मिल जाएगा। जुनैद ने मुट्ठी सख्ती से बंद की और खड़ा हो गया। इसे ये नहीं मालूम था कि वो पुरस्रार शख्स दोस्त था या दुश्मन, मगर एक बात तय थी, कोई इसे इस फरेब के जाल में छपी सच्चाई की तरफ धकेल रहा था। बगदाद की गलियां अब खामोश थीं, कभी कभार किसी चिराग की झिलमिलाहट गश्त पर मामूर सिपाहियों की सरगोशियां सुनाई देती। जानियद जानता था कि वक्त उसके हाथों से फिसल रहा था। अगर वो तुलुआ आफताब से पहले कोई सबूत ना ला सका तो मूसा बन हारिस पर जुल्म हो जाएगा, मगर उसके पास सबूत था ही नहीं। सिर्फ ये चांदी के सिक्के और एक बढ़ता हुआ शक के असल चूर अब भी आजाद घूम रहा है। जुनैद ने सबसे पहले बाजार का रुख किया। रात के वक्त ये जगह एक मुख्तलिफ दुनिया लगती थी, ना शोर ना हुजूम, बस अंधेरों में गुम दुकानें और मसालों की खुशबू। वो धात के कारीगरों के महल्ले में पहुंचा जहां अक्सर सिक्के पिघला कर दोबारा ढाले जाते थे। एक छोटे से दुकान के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद अंदर से एक करख्त आवाज उभरी, कौन है जो मेरा सुकून बर्बाद कर रहा है? जानियद ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं इल्म का मुतलाशी हूं और मैं इसके लिए कीमत अदा कर सकता हूं। दरवाजा चरचराते हुए खुला। एक पतला आदमी जिसकी उंगलियां स्याही से दागदार थीं, बाहर झांका। इसकी आंखें चूहे की मानिंद थीं, हमेशा हरकत में हर चीज का जायजा लेती हुई।
मैं राशिद सिक्का गिर हूं, इसने सरगोशी की। क्या चाहिए? जानियद ने खामोशी से एक चांदी का सिक्का मेज पर रखा। क्या तुमने पहले ऐसे सिक्के देखे हैं? राशिद ने सिक्के को उठाया, चिराग की रोशनी में घुमाया। इसकी पेशानी पर शिकने उभर आए। ये सरकारी खजाने का सिक्का है। मगर जानियद करीब हुआ। मगर क्या? राशिद ने बगौर मुआयना किया। वजन दुरुस्त है, नक्श व निगार भी ठीक है। मगर देखो यहां, इसने किनारे की तरफ इशारा किया। हल्की सी बेकायदगी। ये सिक्का खलीफा के शाही टकसाल में नहीं बना, ये कहीं और तैयार किया गया है। जुनैद का दिल जोर से धड़का। तुम्हें यकीन है? राशिद ने सर हिलाया। मैं उम्र भर से सिक्के ढालता आया हूं। ये नकली है, इंतहाई महारत से बनाया गया, मगर जाली। सर्द हुआ जुनैद की रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। ये मामला सिर्फ मूसा बिन हारिस की ईमानदारी का नहीं था। कोई खलीफा की चांदी चरा कर जाली सिक्के बना रहा था। असली चांदी गायब और खजाने में नकली दौलत भरी जा रही थी, और शाही दरबार में कोई इस साजिश को छुपा रहा था। राशिद ने मजीद बताने से इनकार कर दिया, जैसे किसी अनजाने खौफ ने इसकी जुबान पर कुफुल लगा दिया हो। मगर जुनैद ने एक सोने का सिक्का निकाल कर उसकी हथेली पर रखा और कहा, सिर्फ इतना बता दो कि ऐसी नकली सिक्के कहां बन सकते हैं। राशिद ने इर्द गिर्द देखा, फिर सरगोशी में कहा, मगरबी गोदियों के पास एक पुराना गोदाम है। वहां अक्सर गैर कानूनी माल आता है। अगर कहीं जाली सिक्के बन रहे हैं तो वहीं होंगे। जानियद ने सर हिलाया और तारीकी में निकल खड़ा हुआ। दजला के किनारे जहां हुआ में नमकीन पानी की महक और सड़े हुए लकड़ियों की बास बसी हुई थी, जानियद खामोशी से गोदामों की तरफ बढ़ा। ये इलाका इस वक्त तकरीबन सुनसान था, मगर चंद साए दबे कदमों चलते नजर आ रहे थे। वो लोग जो देखे जाना पसंद नहीं करते थे। वो अंधेरों में छुपता छुपाता एक पुराने गोदाम तक पहुंचा जहां राशिद ने इशारा किया था। इसकी दीवारें पुरानी और छत धंसने के करीब थी, मगर दरवाजे लोहे से मजबूत किए गए थे। अंदर से धात पर धात के बजने की मध्यम आवाज आ रही थी। जानियद का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एक खिड़की की दर्ज से झांकने में कामयाब हो गया। अंदर 3 आदमी एक मेज पर झुके काम कर रहे थे। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे, चांदी के टुकड़े तराशते, जाली सिक्के ढालते। उनके करीब सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर पड़े थे, सबूत कि ये जुर्म छोटे पैमाने पर नहीं हो रहा था। मगर फिर जुनैद का सांस रुक गया। अंधेरे में एक और शख्स खड़ा था, खामोश मगर हुक्म देता हुआ। अकील बिन फारिस, वजीर आजम का खास मोतमिल। जुनैद फौरन वहां से निकलना चाहता था, मगर तभी एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर आया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक सख्त आवाज ने सरगोशी की। जुनैद ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसका पकड़ने वाला ताकतवर था। एक कपड़ा इसके मुंह पर रखा गया ताकि वो चीख ना सके, और इसे घसीट कर गोदाम के पीछे ले जाया गया। खंजर उसकी गर्दन से लगा दिया गया। तुम कौन हो? सिया लिबादे वाले शख्स ने पूछा। जानियद खामोश रहा। लगता है हमें तुम्हारा जिस्म दरियाए दजला के हवाले करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे राज वही रखे, हमला आवर बोला। जानियद ने आंखें बंद की और दिल में दुआ की, अल्लाह अगर ये आजमाइश है तो मुझे सुरखरू फरमा। तभी हुआ में एक धार तेजी से किट्टी, एक चीख गूंजी और जानियद की गर्दन पर दबाव खत्म हो गया। सामने एक साए ने बिजली की सी तेजी से वार किए।
एक फिर दूसरा दुश्मन गिरा। तुमने हकीकत ढूंढ ली जुनैद बिन सलीम, वही पुरस्कार शख्स बोला। इसकी तलवार से खून टपक रहा था। इसने जुनैद की तरफ हाथ बढ़ाया। मगर अब तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि ये सच्चाई दुनिया के सामने ला सको। जुनैद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने निकाब पोश अजनबी को देखा, जो एक बार फिर खतरे के ऐन मौके पर नमूदार हुआ था। दिल्ली में कातिलों की लाशें पड़ी थीं और खून की वो दरिया की नमकीन हवा में घुल रही थी। अजनबी ने अपनी तलवार को एक मुर्दा शख्स के कपड़ों से साफ किया, फिर जानियत की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वजीर आजम का मुआविन जल्द ही जान जाएगा कि इसके आदमी नाकाम हो चुके हैं और वो अपने जुर्म के तमाम सबूत मिटा देगा। जानियत ने मुट्ठी भींच ली। तो मुझे वजीर आजम तक पहुंचना होगा इससे पहले कि वो कोई और चाल चले। अजनबी ने सर हिलाया। और तुम क्या कहोगे कि एक आम कुम्हार ने नकली सिक्कों की साजिश का पर्दाफाश किया, कि एक ताजिर पर झूठा इल्जाम लगाया गया जबकि असल चोर खुद हुकूमत के अंदर छुपा हुआ है। जुनैद का अज़्म अटल था। मैं सिर्फ सच कहूंगा। अजनबी ने कुछ लम्हे गौर से इसे देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। तो फिर हमें जल्दी करनी होगी। जुनैद और अजनबी शहर की गलियों में साए की तरह हरकत करते रहे, तंग रास्तों से गुजरते और वजीर के सिपाहियों की नजर से बचते हुए। महल अभी दूर था और जानियत जानता था कि अकील इब्न फारिस, वजीर आजम का बदुनवान मुआविन, चुप नहीं बैठेगा। जब वो महल वाले बड़े पिल के करीब पहुंचे तो दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। जानियत का दिल बैठ गया। वजीर के सिपाही। अजनबी ने ज़ेरे लब बड़बड़ा। वो पहले ही तुम्हें तलाश कर रहे हैं। जुनैद ने आदेर अलिफादेर नजर दौड़ाई। इसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो मैदान में सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसने इशारा किया, हम दरिया के रास्ते जाएंगे। अजनबी ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सर हिलाया। पानी के बहाव ने उन्हें फौरन पकड़ लिया और दजला के बीचों बीच ले जाने लगा। ऊपर पिल पर मशलें जल रही थीं और सिपाही गुजर रहे थे। जानियत ने सांस रोक ली। एक सिपाही रुका, नीचे दरिया की तरफ झांका। फिर कहीं दूर एक सीटी बजी। ये कोई इशारा था। सिपाहियों ने फौरन घोड़े मोड़ लिए और शहर की तरफ रवाना हो गए। जुनैद ने आहिस्ता से सांस खारिज की। अल्हम्दुलिल्लाह। अजनबी ने चप्पू चिल्लाना शुरू किए। इसका चेहरा अब भी साए में छुपा हुआ था। वो महल में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें तैयार रहना होगा। इंसाफ का दरबार। जब वो महल के किनारे पहुंचे तो मशरिक में सूरज की पहली रोशनी नमूदार हो रही थी। उनके कपड़े दरिया की नमी से भीग चुके थे। महल के सुनहरी दरवाजे उनके सामने बुलंद थे, लेकिन कुछ गलत था। दरवाजे पहले ही खिले थे। अंदर मशलें रोशन थीं। आजंद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्हें मालूम है कि मैं आ रहा हूं। अजनबी की आवाज संजीदा थी। तो वो तैयार भी होंगे। बगैर किसी हिचकिचाहट के जुनैद आगे बढ़ा। वो ना डरेगा ना छुपेगा। इसने सच्चाई का पर्दाफाश किया था और वो इसे हर हाल में पहुंचाएगा। जब वो इंसाफ के अजीम हाल में दाखिल हुआ तो उन्हें अपना इंतजार करते पाया। वजीर आजम अपनी बुलंद नशिस्त पर बैठा था। इसका चेहरा बेतासुर। दाएं तरफ शाही कातबों की कतार थी और बाईं जानिब महल के सिपाही, जिनके हाथों की गिरफ्त तलवारों के दस्तों पर मजबूत थी। और हाल के बीचों बीच एक मकवर मुस्कुराहट के साथ अकील इब्न फारिस खड़ा था।
जुनैद के जबड़े सख्त हो गए। वजीर आजम की गरजदार आवाज गूंजी, जुनैद इब्न सलीम, तुम पर खजाने के खिलाफ साजिश करने और एक मुअज़्ज़ज़ आदमी पर झूठा इल्जाम लगाने का दावा किया गया है। तुम इस इल्जाम पर क्या कहते हो? जुनैद का सांस अटक गया। ये एक जाल था। अकील ने चालाकी से बाजी पलट दी थी, मगर जानियद ने खुद को संभाला। वो एक कदम आगे बढ़ा। इसकी आवाज पुरअज़्म थी, मेरे आका, मैं यहाँ झूठ फैलाने नहीं बल्कि सच बताने आया हूँ। इसने अपनी जेब से चांदी के सके निकाले। ये सके जाली हैं। ये खजाने के बाहर बनाए गए ताकि असली चांदी चरा कर नकली सिक्कों से बदला जा सके। अकील की मुस्कुराहट नहीं, ये एक निडर दावा है, लेकिन तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है? जुनैद ने इसकी आंखों में आंखें डाले। मगरबी गोदी पर, जहां मैंने एक गोदाम जाली सिक्कों से भरा हुआ पाया, और इसी गोदाम में मैंने तुम्हें भी देखा। हाल में सरगोशियां गूंजने लगी। वजीर आजम की नजरें गहरी हो गईं और वो अपने सेक्रेटरी की तरफ मुतवज्जे हुआ। अकील के चेहरे पर कोई तासुरात न थे, लेकिन जानियद ने इसके जबड़ों की सख्ती महसूस कर ली। वजीर आजम आगे झुका, क्या ये सच है? अकील ने हल्का सा कहकहा लगाया। एक कुम्हार की मनगढ़ंत कहानी, इसने कहा। क्या हम उसके अल्फाज को मेरे बरसों की खिदमत पर फौकियत देंगे? जुनैद ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो गोदाम की तलाशी ली जाए। शाही कातिब सके जांची। अगर मैं गलत निकला तो जो सजा अब चाहिए मुझे दी जाए। हाल में खामोशी छा गई। वजीर आजम ने जुनैद और अकील को बगौर देखा, फिर एक सिपाही की तरफ मुतवज्जे हुआ। शाही मुहाफिजों के कप्तान को बुलाओ। मैं चाहता हूं कि फौरन इस गोदाम की तलाशी ली जाए। अकील की मुस्कुराहट आखिरकार मिट गई। इसके हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए। वो फंस चुका था। जानियद ने इसकी आंखों में गुस्से की चमक देखी। ये शख्स सालों से बड़ी चालाकी से अपनी साजिश बांध रहा था। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, और वो जानता था कि अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। अचानक अकील ने अपनी जाबुई के अंदर हाथ डाला। जानियद बमुश्किल रद्द-अमल दे पाया कि हाल में एक तेज चमक नजर आई। अजनबी ने हवा में हरकत की। इसकी तलवार बिजली की तरह चमकी। अकील हाँफते हुए पीछे हटा। खंजर उसके हाथ से गुजर चुका था। इसके बाजू पर एक गहरा जख्म नमूदार हुआ और उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ का तासुर उभर आया। सिपाही आगे बढ़े और अकील को पकड़ लिया। वजीर आजम गुस्से से खड़ा हुआ। इसका चेहरा सख्त हो गया। बस हाल में खामोशी छा गई। अकील ने सांसें फूलते हुए जुनैद को घूरा। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? वो जहरीले लहजे में बोला। तुम कुछ नहीं जानते कि मैं कुन लोगों की खिदमत करता हूं। जुनैद ने भनवें चढ़ाई। तुम्हारा मतलब क्या है? अकील हल्के से हंसा। इसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। इस साजिश के पीछे असल ताकत इस महल में नहीं बैठती। वो अंधेरों में है, जहां वजीर आजम की पहुंच भी नहीं। जुनैद के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। कोई और भी था, कोई और जो ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ पूछता, वजीर आजम की आवाज गूंजी, इसे ले जाओ। सिपाही अकील को खींचते हुए ले गए और उसकी हंसी हाल में गूंजती रही। जुनैद ने गहरी सांस ली। इसका जिस्म लरज रहा था। इसने ये जंग जीत ली थी, मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वजीर आजम ने इसकी तरफ देखा।
जुनैद इब्न सलीम, तुमने इस शहर पर बड़ा एहसान किया है, लेकिन अगर उसके अल्फाज सच हैं तो अभी एक और बड़ा खतरा बाकी है। जुनैद की आंखों में अज़्म चमका। तो फिर मुझे इसे बेनकाब करना होगा। वजीर ने आहिस्ता से सर हिलाया। देखते हैं कि ये साजिश कितनी गहरी है। जब बगदाद के आलीशान हालों पर फजर की पहली रोशनी पड़ी, जुनैद को एहसास हुआ कि इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हकीकी दुश्मन अभी सामने नहीं आया था। अदालत के हाल में अकील की हंसी की गूंज अभी बाकी थी, मगर जुनैद का दिल किसी और खौफ से धड़क रहा था। अकील ने किसी और का जिक्र किया था, किसी ऐसे शख्स का जो पर्दे के पीछे रहकर बगदाद के ताकतवर लोगों को काबू में रखता था। वजीर आजम गहरी सोच में डूबा था। तुमने अपनी ईमानदारी और बहादुरी साबित कर दी है, इसने कहा, लेकिन मैं डरता हूं कि अकील के अल्फाज सिर्फ धमकी नहीं थे। अगर वाकई एक बड़ा दुश्मन है तो हमें इसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो हम पर वार करे। जुनैद ने सर हिलाया। मैं इस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं इस साजिश के असल मुजरिम को ना ढूंढ लूं। ये वजीर ने सिपाहियों की तरफ रुख किया। खजाने की निगरानी बढ़ा दो, शहर में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दो और मेरे सबसे काबिल एतमाद कातबों को बुलाओ। हम हर रिकॉर्ड, हर लेन देन को खंगालेंगे, यहाँ तक कि हमें हकीकत मालूम हो जाए। जुनैद जानता था कि वक्त कम था। वो शख्स जो इस साजिश का असल सरगना था अब चुप नहीं बैठेगा, और वो बिल्कुल सही था। इसी रात जब जुनैद बगदाद की तंग गलियों से गुजर रहा था, एक सरगोशी इसके कानों में आई। बियाजीद के घर जाओ। और जुनैद ने फौरन पलट कर देखा, मगर वो शख्स जो बोला था अंधेरों में गायब हो चुका था। ये नाम वो जानता था, बियाजीद इब्न खलफ, बगदाद के अमीर तरीन ताजिरों में से एक, जो सोने और गैर मुल्की तिजारत का माहिर समझा जाता था। मगर सबसे बढ़कर उसके बारे में मशहूर था कि इसके ताल्लुकात दूर दराज के हुक्मरानों, किराए के कातिलों और चोरों के ग्रोहों से हैं। जुनैद का खून सर्द पड़ गया। क्या वाकई वही इसका दुश्मन था? वो वक्त ज़ाय किए बगैर बियाजीद के आलीशान महल की तरफ रवाना हुआ, एक शानदार इमारत जो शहर के कल्ब में किले की तरह खड़ी थी। वो खामोशी से चुपके चुपके अंदर दाखिल हुआ और एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में पहुंचा, जहां दो आदमी सरगोशियों में बात कर रहे थे। इनमें से एक बियाजीद था, नफीस रेशमी लिबास में मलबूस, इसकी दाढ़ी संवारी हुई थी और उसकी उंगलियों में कीमती अंगूठियां चमक रही थीं। और दूसरा अकील था। जुनैद का सांस रुक गया। अकील पहले ही कैद से फरार हो चुका था और अब वो इस साजिश के असल सरगना के सामने खड़ा था। तुम अहमक हो, बियाजीद गुस्से से बोला। तुमने एक आम कुम्हार को हमारे मंसूबे का पर्दा चाक करने दिया। अकील ने जख्मी बाजू को सहलाते हुए दांत पैसे। वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। जुनैद ने मजीद कुछ सुनने की जरूरत महसूस न की। इसने कदम आगे बढ़ाया और उसकी आवाज कमरे में गूंजी। तो फिर तुम्हें मुझे कत्ल करने का मौका मिल जाना चाहिए था। दोनों आदमी चौंक कर मुड़े, हैरत उनके चेहरों पर जिम गई। तुम, अकील ने नफरत से कहा। बियाजीद की आंखें तंग हो गईं। तो कुम्हार ने खुद को मसीहा समझ लिया। जुनैद ने इसकी आंखों में आंखें डाली। मसीहा नहीं, सिर्फ एक आदमी जो अपने शहर को बुराई के कब्जे में नहीं जाने देगा। बियाजीद तंजिया मुस्कुराया और तालियां बजाईं। साए से एक दर्जन मुसल्लाह आदमी नमूदार हुए, उनकी तलवारें रोशनी में चमक रही थीं। जुनैद जानता था कि वो तन्हा उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। मगर जैसे ही मुहाफिजों ने हमला करना चाहा, कमरे के दरवाजे जोर से खिल गए।
वजीर आजम के सिपाही अंदर दाखिल हुए। उनकी तलवारें बेनियाम थीं और उनके साथ वही पुरअसरार निकाब पोश शख्स था जिसने पहले भी जुनैद की मदद की थी। अकील का चेहरा फक हो गया। बायजीद की मुस्कुराहट मांद पड़ गई। ये बगावत है, वजीर की आवाज गूंजी। हथियार डाल दो वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। बायजीद के आदमी हिचकिचाए, मगर जब कोई रास्ता ना बचा तो उन्होंने हथियार फेंक दिए। बायजीद के हाथ गुस्से से मुट्ठियों में बंद हो गए। क्या तुम समझते हो कि मुझे गिरफ्तार करने से ये सब खत्म हो जाएगा? हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो लालच और ताकत के पीछे भागेंगे। जुनैद आगे बढ़ा, इसकी आंखों में आग जल रही थी। और हमेशा ऐसे लोग भी रहेंगे जो सच और इंसाफ के लिए खड़े होंगे। बायजीद ने एक खुश्क हंसी हंसी, मगर वो जानता था कि वो हार चुका है। वजीर आजम के इशारे पर सिपाहियों ने गद्दारों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी बदउनवानी का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। चंद दिन बाद जुनैद दोबारा वजीर आजम के सामने खड़ा था। बगदाद को बदउनवानी से पाक कर दिया गया था और इंसाफ कायम हो चुका था। वजीर आजम ने फख्र से जुनैद की तरफ देखा। तुमने वो कर दिखाया जो मेरे बेहतरीन आदमी भी ना कर सके। तुम्हारी ईमानदारी, बहादुरी और अल्लाह पर भरोसे ने बगदाद को तबाही से बचा लिया। जुनैद ने आजिज़ी से सर झुका दिया। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था, वजीर ने मुस्कुरा कर कहा, और इसीलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। आज के बाद तुम सिर्फ एक कुम्हार नहीं रहोगे, तुम्हें शहर की तिजारत और खजाने की निगरानी सौंपी जाती है, ताकि बगदाद में दोबारा कभी बदउनवानी न जड़ पकड़ सके। जुनैद हैरत में पड़ गया। एक आम कुम्हार जो अब शहर की दौलत का मुहाफिज बनने जा रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये इनाम नहीं, एक जिम्मेदारी थी। इसने आजिज़ी से कबूल किया, जानते हुए कि वो दौलत और ताकत की वजह से